Some conversations always leave us with a feeling of talking a little more. So, this episode of Shrishti is one such conversation. Hello, everyone, and welcome back to this podcast, Shrishti, where every story, every episode has something really inspirational and something which gives us a lot of thoughts, lot of things to learn from. I'm Nivedita Singh, and I'm very honored to welcome you to this podcast where we have lots of reflections, lots of learnings, and the time spent here is totally worth it. Our guest today is someone who has been in the education industry for more than 28 years now. She's a parenting coach. Her expertise in occult sciences is tremendous. She does numerology, tarot card reading, astrology, and she's basically a spiritual healer. She's also an author and the senior English editor of Parenting Insight magazine, and a lot more things to add to her hat. She founded Mind Lancer. She's the director of Mind Lancer and also Nitra, which is again related to her expertise in this various fields that I just mentioned. Her name is Nidhi Mithil Bhandare, and it is not just the learnings which she has through these areas of expertise, but she had a life threatening uh, health challenge, and the beauty of how she came through it is tremendous. She was at a stage where anyone would have easily given up, but her knowledge, her experience, her expertise, all of this helped her heal spiritually more than medically, I would say. Like, more than the medicines that worked on her, it was her spiritual connection which helped her get back to life after that challenge happened. So this is a great conversation, and yes, we also cover an angle of parenting, which she where she has done a lot of work. So join me in welcoming Nidhi ma'am to this episode, and I would really suggest it. It is more than the usual time we have for an episode, but it is totally worth it. So do listen to this episode, share what you feel about all the insights that she has shared with us, and it's a beautiful conversation. So once again, join me in welcoming Nidhi ma'am to this episode. You so much for accepting to come and share your story on this podcast. Really My honored to pleasure. have you. एंड स्पेशली क्योंकि पेरेंटिंग डे मनाया जाता है, तो उस वजह से आई वांटेड समवन जिनको, मतलब जो एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हो, एंड वी गेट समथिंग टू लर्न with regards to parenting also. So you have a profound experience in that area. So I'm very, very honored that you're here today. To start with, if I ask you, what are the defining chapters of your life जिसने आपको shape किया to become a woman that you are today? Actually, when I look back, every phase has taught me. And I think so it is with everyone. Mhm. If a person says कि मैंने सीखा, it is not about we learning, it is about life teaching us. So my way of living is जहाँ जिंदगी ले जाए बस वहां चलते चलो बिकॉज गॉड्स प्लान्स आर ऑलवेज यूनिक एंड वेरी नाइस. हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं. So you Correct. should keep on moving बहुत आराम से. As a river कैसे बहती जाती है, right? So Right. every person should learn from a river, and that is what I do. मेरे बोलते हैं ना कि आइडल कौन है, तो a river. I learn a lot from rivers कि बहते जाओ, कभी खराब नहीं होगा, एक दिन समुद्र में मिल ही जाओगे. And that is the purpose of my life. Wonderful, wonderful. That's a very unique insight. क्योंकि जनरली जब हमसे पूछा जाता है who is your ideal या आप किससे सीखते हो, तो we usually think about a person or
parent, someone. But it's a beautiful thing that you said, learning from the river. Yeah, Great. everybody should do that. Yes, yes. So, you have many things that you do and you have expertise Mm. on. You're a career counselor, you're a parenting coach, you have deep knowledge in occult sciences also. Mhm. So, was this always your plan, or again, like the flow, life took you to these fields? No, it was never a fixed plan. You know, as I said earlier, our Mhm. plans always fail. मतलब I think so 10% of plans हमारे जो होते हैं they are successful. Otherwise, you know, it is like but ठीक है. So mine was never fixed, you know. Nothing was fixed. Let it be education, counseling, parenting, occult. So it was like, you know, wherever life took me and I got a chance to learn because life is all about learning every day, you know, Absolutely. till your last breath. So my Yes. purpose and my way of living is every day I learn. I learn from a very small child also, a child of 5 year old, because you know, हर कुछ हमको सिखाता है. Everything, every human being, I can say everything that is a part of a nature. You know, so my plans were never fixed. बस I kept on moving. जो दरवाजा खुला, I entered and I learned. Then I, you know, took another step. फिर दूसरा दरवाजा आया. Then I entered. I learned something. So this is the way, and I'm still learning. And I still want to Yes, learn a yes. lot because you know nobody is fully knowledgeable here. Absolutely agree. Agree to And that. we have got a life of human, so we are blessed. You know, भगवान ने हमको इंसान बनाया, so we need to learn every day, and that is what my purpose in life is, कि बस keep on learning. And it is not about rewards, awards, or you know, batches. It is all about, you know, after learning, what we give back to people and the nature. So that Absolutely. is what my purpose is, कि जो सीखा है उसमें से 10% भी if I spread, so that will be like, you know, I can go and meet that energy after leaving this world, कि yes, मैंने जो सीखने की कोशिश की उसमें से थोड़ा बहुत बांटा भी है. So that is what my purpose is. Beautiful, beautiful. So with that, I know that your journey also had a serious health issue. So would you be comfortable telling us about how you dealt with that? What had happened? How you dealt with that? Because it Okay, that's requires a great. lot of mental strength. Yeah, actually, it was like a turning point in my life. You know, Mhm. people say that this was a turning point in my life. So that was in 2022. I suffered dilated cardiomyopathy. It means heart failure. So my heart was working only 10%. And you won't believe, Nivi, I was in Delhi all alone. And I knew something was wrong, you know, kuch to, because your body gives you signals, right? Yes, But yes. I'm a person, you know, my willpower by God's grace is so strong that I, you know, Mhm. kept on like, no, nothing is happening. ठीक है, सब ठीक है. You know, I could not breathe. And heart failure, you know, heart failure is heart failure. Main brain and heart are two most important organs of our body. So, but that phase taught me so much, you know. And I was into occult 25 years back, but I just, you know, मैंने एक बोलते हैं ना, I was away from occult because I was so much into parenting, education, counseling. So I forgot that part, you know. So this phase of my life opened my eyes. And you know, that time I realized that I am meant to guide people. I am meant to heal people. So the first thing I did was I healed myself. So see, I'm sitting in front of you. So healing has so much power, you know, meditation, healing. कि कहते हैं ना कि you don't connect with yourself. You know, we are more into materialistic world. हम बाहरी दुनिया में ज्यादा रहते हैं. So that phase taught me to, you know, meet myself. Who am I?
the person I am, why I am here, the purpose of my life. So, and in those salon, I wrote my own book, Whispers of the Heart, and that is my life story. That we forget people of our past, जिन्होंने हमारे life को touch किया है. They have made me the person I am today. People say, मैंने सीखा. Where I am today because of my hard work. Of course it is, but I say 80% you are what you are today because of the people who have been a part of your life. Absolutely, They absolutely. have made you the person you are today. And Nivi, in that book, I have mentioned all those people who made me Nidhi, the way I am today. Because It's a beautiful book. yeah. I've read it. And people say मैं अपनी वजह से यहाँ हूँ. Nobody is, जो भी successful people हैं वो खुद की वजह से successful नहीं है पूरी तरह. There are people who are a part of their success. They are the most important part rather, जिन्होंने आपको आज ये बनाया है जहाँ पे आप खुद को successful कहते हो. So this heart failure taught me so many things, It opened my eyes. कि where am I running? What am I doing? Away from my family. So, and this taught me family is the most important part of your life. जब आप एक कमरे में ऑक्सीजन पे रहते हो तो योर फैमिली इज डिस्टर्ब. दे आर योर सपोर्ट, दे आर योर कंफर्ट, दे आर योर स्ट्रेंथ. So my Agree. heart failure taught me so many things, and I'm sitting in front of you because of those people, My husband, my daughter, my pet Casper, he was with me 24 hours. My mom, my siblings, my family, and friends like you. Great, So great. this is That what. was indeed a very difficult time, and the way you gracefully and yes, your willpower is commendable. That you had a very positive, you maintained a very positive persona even then. So kudos to you for that. Thank And you. yes, it's very happy thing that you are back and you are like again you have the same energy, maybe more but not less. So we all pray that you keep up to this, because there are a lot of people who are learning a lot from you. Like you said, giving back to the society is an essential part, and your purpose is that you're doing that, so that's really commendable. So would you say that difficult phases in life teach more than the successes, having discussed what we did Right. just now? Exactly. Exactly. I second that. I also believe this, that you're difficult. Success teaches. Mhm. You learn more, you become more strong. Yes, you know true, true. success has a very different definition for each and every person. Yes. For some person success is keep your people are coming to take photographs. Okay, success is like you are a multimillionaire. Fine. For me, success is to be satisfied, you know to be satisfied with what I'm doing, to spread happiness, to make people smile. As my purpose was to be for people. आजकल सब अकेले हो गए हैं. Everybody is lonely in this digital world. Yes. So success for me is to be for people. Like मेरा एक thought process था, मैं हूं ना, that, you Yes. know for people, like to there's nobody to listen to, nobody to Mhm. talk to. So be there for people. For success for me is to help people, uh, to solve the problems, to solve the issues. And many times I see कि problem होती ही नहीं है. People think कि problem है. Hmm. And problem क्या है कि they don't see the solution. So for me, success means to उनको solution दिखाना कि Right. problem छोटी सी है Hmm. और solution तो बहुत सारे हैं. And you are focusing more on the problem, तो आपको solutions नहीं दिख रहे.
नहीं So दिख for me, रहे। success is to show them that this is the solution, okay? And to make them smile, give them happiness. And for me, एब्सोल्युटली। success is like to spread happiness. I am successful when people are happy. I am successful जब किसी इंसान को जरूरत हो तो वो निधि मैम को कॉल करे. So I am successful that time. So राइट that is the राइट। definition. And struggles, though, every struggle teaches you something, यस। and something good rather. तो आपका विल पावर कि नथिंग इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. जब लोग सोचते हैं ना दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नहीं, नथिंग इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. राइट। Every step is a new beginning. Every challenge is a new beginning. जब आप ऐसे लाइफ को देखोगे, and life is beautiful, Nivi. Life is beautiful. People around you are so nice. आप बस अच्छी चीजें देखते जाओ. हम्म। Nobody is perfect here, right? Not even अगर मेरी बात करोगे, मेरे में भी बहुत कमियां होंगी, but तुम में भी होंगी, सब में होंगी. तो see good things in people और बस वो चीजें लेते जाओ. एक इंसान में 10 बुराइयां हैं, एक अच्छाई है, तो जस्ट सी दैट गुडनेस, उसको अडेप्ट करो, उसको लो और आगे बढ़ो. सो फॉर मी दैट इज सक्सेस. वंडरफुल। यस, आई या टोटली एग्री। जो हम वो कहते हैं ना, नजर और नजरिया। सो जैसा नजरिया हम बनाते हैं, अगर हम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे होते तो हमें दिखता ही नहीं है कि कोई सोल्यूशन है। बट जैसे कहते हैं हर ताले की चाबी है, वैसे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सो बिल्कुल. ग्रेट ग्रेट। सो इस चीज को कंटिन्यू करते हुए, पेरेंटिंग जो कि आज के टाइम में लाइक पहले भी था, इट इज हम्म. समथिंग दैट वी कीप लर्निंग। ऐसा नहीं कि वी हम्म. आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट आज के टाइम में पेरेंटिंग इश्यूज, कंप्लेन्स, ये सारे थोड़े ज्यादा बढ़ गए। तो डू यू थिंक कि आज के टाइम पे देर आर बिगर चैलेंजेस दैट पेरेंट्स आर फेसिंग देन व्हाट वाज अर्लियर? या इट्स नॉट अबाउट चैलेंजेस. एक चैलेंज मुझे सबसे ज्यादा दिखता है. इट इज नॉट लैक ऑफ लव, बट लैक ऑफ टाइम एंड कम्युनिकेशन. बिकॉज पेरेंट्स इतने बिजी हो गए हैं और स्ट्रेस भी है और बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं. तो जब कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा, एंड व्हाट डज अ चाइल्ड नीड? अ चाइल्ड नीड्स प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, जो कि लैक हो रहा है. राइट। तो अग्री यू अग्री। हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू गिव देम टाइम, यू हैव टू टॉक टू देम. तो वही एक चैलेंज दिखता है, बिकॉज सब इतने बिजी हो गए. बट आप पेरेंट बने हो तो आपको बच्चे को टाइम देना ही है. You राइट। cannot say कि we don't have time. That is not an excuse. You have to take out time. वो आपके ऊपर है, आप कैसे टाइम निकालते हो. So that is the only challenge I think अभी जो पेरेंट्स को है. अगर आप टाइम और कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखोगे तो बच्चे के डिस्ट्रैक्शंस भी कम होंगे. बच्चे डिस्ट्रैक्टेड क्यों हैं? क्योंकि पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है. करेक्ट और करेक्ट। आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, उनके हाथ, पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में है. So हाँ, बट this वो is the भी only एज challenge. पेरेंट्स कहीं ना कहीं हम ही इंट्रोड्यूस कराते हैं लाइक बिल्कुल. चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल. तो करेक्ट। यही चैलेंज मुझे लगता है पेरेंट्स को है. ओके, So और they have दूसरी to चीज। find a way. या। Hmm. यस। सो एक चीज है कि या निधि. वो अभी भी बहुत ज्यादा फोकस होता है करियर बनाने पे, मार्क्स के आ रहे एग्जाम्स पे। सो ये चीजें तो रहती हैं, विच इज कंप्लीटली हम इनको नहीं हटा सकते। बट अदर देन दिस, व्हाट आर द लाइफ स्किल्स विच यू थिंक पेरेंट्स शुड ensure that they are teaching their kids? First most important thing I feel is adaptability. That is missing. Hmm. You know, they are not ready to adjust. न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं. न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड होने लगे हैं आजकल ज्यादातर. Hmm. तो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा होता है अडेप्टेबिलिटी सिखाएं. सेकेंड चीज सिखाएं इज एम्पैथी. तो Hmm. अडेप्टेबिलिटी, एम्पैथी, right? Concentration and discipline. Right. Discipline is the key of success. Yes. क्या होता है, पेरेंट्स देखते हैं कि अ, बच्चे लेट उठ रहे हैं, लेट तक मोबाइल पे हैं. तो डिसिप्लिन इज द की.
सबसे रूट कॉज जो है बच्चों का आजकल जो डिस्ट्रैक्शन का है, डिसिप्लिन मिसिंग है। उसके बाद बच्चे की अडेप्टेबिलिटी, बच्चे को अडेप्ट करना चाहिए जैसा भी एनवायरनमेंट हो, वो मिसिंग है, राइट? राइट। एडजस्ट नहीं करता बच्चा। एंड एम्पैथी, एम्पैथी तो यू ऑल्सो नो सबके लिए बहुत जरूरी है, जो कि मिसिंग है। राइट राइट। और हाँ। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगी मैं, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, इज ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी स्मॉल थिंग। मतलब पेरेंट्स भी ग्रैटिट्यूड अगर शो करेंगे, एंड व्हाट आई फील इज अ चाइल्ड एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, अ यस। चाइल्ड ऑब्जर्व्स एवरीथिंग। बिल्कुल। तो इसमें पेरेंट्स को पहले अपने सोच में, अपने डेली रूटीन में चेंजेस आने पड़ेंगे, बिकॉज आई थिंक छोटे बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता। A child observes, then यस absorbs. तो यस। ये चीजें अगर पेरेंट्स अपने आप में चेंज करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद घर का एनवायरनमेंट जब देखेगा, कहते हैं ना बच्चे को सिखाने की जरूरत ही नहीं होती। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल, जब आपके यहाँ बच्चा आता है, पहले जब 6 साल का हो जाता है तब तक बच्चा बहुत कुछ सीख चुका होता है। 6 इयर्स बिल्कुल। तक बच्चा सब कुछ सीखा रहता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में सब बैठा रहता है। तो दिस यू हैव टू चेंज व्हेन यू हैव अ चाइल्ड एट होम। Right, right. What you've said, everything, I think it's like a pillar जो कि एक personality develop करते हैं, and I totally agree. Gratitude, discipline, these are the basics जो as a human हमें आने चाहिए, and it is our Yes. responsibility कि we give it to the child. And we take things for granted. Yes. अब वाटर छोटी सी चीज है, पानी बह रहा है, नेचर है बाहर का। वी थिंक ह्यूमंस का प्रॉब्लम क्या है, वी थिंक द एंटायर नेचर इज फॉर अस, हम इसके, ये हमारी प्रॉपर्टी है। जबकि छोटी छोटी चीज का ग्रैटिट्यूड रखिए, आप रखेंगे तो बच्चा देखेगा। Gratitude for every small thing. I'm not talking about only living things, non-living things also I'm talking about. Yes. छोटी Yes. छोटी आपकी, आप what I do is like even अभी मोबाइल हमको कनेक्ट कर रहा है तो आई हैव अ ग्रैटिट्यूड कि इसने हमको कनेक्ट करवाया। Yes. छोटी छोटी चीज का ग्रैटिट्यूड, तो ये एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाता है, नर्चर करता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। भी जो वर्क करने की जरूरत है पेरेंट्स को, जिसको हम ध्यान भी नहीं देते, वी डोंट इवन पे अटेंशन, कि हमको लगता है ये अननेसेसरी है, पर ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई या आई कंप्लीटली अग्री टू दिस, बहुत जरूरी होता है, और हमें वो चीज खुद की प्रैक्टिस में लाना, उन्हें दिखाना इज वेरी यस, इंपॉर्टेंट। यस, यस, राइट। चाइल्ड इज गोइंग टू सो ऑब्जर्व यस। कि पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, पेरेंट्स किसका ग्रैटिट्यूड रखे। तो यू डोंट नीड टू टीच अ चाइल्ड एज अ पेरेंटिंग को, जैसे यू डोंट नीड टू टीच अ चाइल्ड, बच्चा सीख जाता है आपसे। और आपको, आप ये समझ भी नहीं पाते हो बच्चा क्या क्या सीख रहा है आपसे। देन बाद में हम कब कहते हैं ना, वॉट एवर यू राइट यू रीड लेटर। यस यस। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके। Uh-huh. So moving ahead, like you have almost 3 decades of experience in career counseling. So, what do you think are the common mistakes that parents make while choosing a career for their children? क्योंकि आज भी it is parent driven only. We cannot say बहुत कम fraction होगा जहाँ पे बच्चे खुद decide करते हैं, खुद explore करते हैं. It's mostly parent driven. So, what do you think are the mistakes that they commonly make? द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज सोसाइटी बेस्ड, जैसे मोस्टली पीपल से कि इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स सबसे अच्छा प्रोफेशन होता है, एंड इट इज ऑल अबाउट पेरेंट्स थिंक कि सोसाइटी क्या बोलेगी। एंड सेकेंड, like suppose I am into counseling and my husband is an engineer, so he, उनका एम क्या रहेगा, बच्चा इंजीनियर बने। what will be my wish, my child should be a counselor or a psychologist, okay, whatever. So most important aspect is parents should see the skills of a child, what is the Right. passion of a child, what a child likes, because ऊपर वाले ने भेजा है तो
कोई ना कोई स्किल दे के भेजा है। तो एज पेरेंट्स what is our first duty is to find out the skill. जो भी स्किल है बस उसको सपोर्ट करना है। उसमें क्या होता है, I'll tell you one thing, what happens if we support the skill of a child and the child does what the skill, what is the passion of a child. A child is happy, a child is Right. satisfied, and a child loves doing it. I'll tell you, Yes. most of the people I'm talking about, हमारे जो पहले के जनरेशन थी and even हमारे लिए, हम we are not doing what we were supposed to do. अब क्या Mm-hmm. हो गया, सपोज फॉर द फादर्स ऑफ द फैमिली, दे हैव टू रन द फैमिली, तो दे आर स्टक, कहते हैं ना चक्रव्यूह में फंस गए। जॉब है, इवन इफ द if a person is not liking the job and if the job is not followed by his passion, so what happens, स्ट्रेस आता है, एग्जॉशन होता है, यू फील सो लेथार्जिक एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज आप एंजॉय नहीं कर रहे हो वो चीज। और Correct. if you do what you are born to do, you love doing the thing. आप Absolutely. 18 आवर्स भी वो काम करोगे ना, यू विल नॉट फील लाइक माय गॉड अब तो घर जाना। यू लव डूइंग द थिंग इफ यू फॉलो द पैशन। सो ये मिस्टेक हमको हमारे बच्चों के साथ नहीं दोहरानी है, पेरेंट्स को ये याद रखना है। इफ अ Right. चाइल्ड इज born टू बी अ सिंगर, उसको सपोर्ट करो। इफ अ चाइल्ड इज born टू बी अ डॉक्टर, सपोर्ट द चाइल्ड। if a child is born to be a dancer, उसको सपोर्ट करो। if a child is born to be a sports person, support the child। और फिर देखो बच्चे कितने खुश रहेंगे। as parents, our duty is to support the passion of a child, not push the child what he's not meant to do। that is the common Correct. mistake, parents do that। Yeah, I think that is an important point where parents need to understand कि focus कहाँ करना है, to support, to identify and support the skill rather than push them towards what they want to do. Okay, so एक चीज yeah इससे इसी से एक क्वेश्चन निकलता है कि कई बार होता है कि लाइक यू सेड कि जो हमारे साथ हुआ वो हम उनके साथ ना रिपीट कराएं, तो इसमें कहीं ना कहीं इमोशनल अनसर्टेनिटी होती है पेरेंट्स के your अंदर। voice is breaking, your voice is safe parenting। When I talk about emotionally safe parenting, it means a child should never be afraid to talk to you. The most important thing. Because when you start being judgmental, when you start comparing the child to others, right? राइट। So, आप क्या करते हो? बच्चे का confidence को low कर रहे हो, side. And a child has to think twice, thrice to come and talk to you. So listening is more important than lecturing। एब्सोल्युटली। Suppressing the child, no. Let the child express, yes. Criticize, no. Compare, no। तो ये अगर पेरेंट्स फॉलो करेंगे तो दैट मीन्स इमोशनली आप कनेक्ट हो रहे हो। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से हियर पेरेंट्स आर रॉन्ग। व्हाई अ चाइल्ड इज अफ्रेड to come and talk to you and tell you each and everything happening in his life or her life, because parents are judgmental। and common चीज I'll tell you, पेरेंट्स दूसरे बच्चों के लिए तो कंफर्टेबल रहेंगे, कोई कंपैरिजन नहीं, बट अपने बच्चे की बात आती है तो दे बिकम जजमेंटल। सो यू हैव टू स्टॉप बीइंग जजमेंटल। बच्चा आपके एग्री। पास नहीं आके अपनी बात बताएगा, देन व्हाट हैपेंस, अ चाइल्ड गोज टू हिज और फ्रेंड्स जो कि सेम एज के हैं, देन दे आर मिसगाइडेड। द पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चा हमसे तो बताता ही नहीं है। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, इट हैज अ वेरी डीप इम्पैक्ट। वो हम भूल जाते हैं, हमको लगता है छोटी सी चीजें, नो, इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं आगे चल के। जब बच्चा टीनेजर उसमें आता है, एडोलेसेंस में आता है, तो बच्चा फिर बाहर जाता है बिकॉज उसका ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं हो पाता पेरेंट्स से। एंड यू राइट। टेल मी, इट इज विद अस ऑल्सो, जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग टू, इवन यस, with एब्सोल्युटली। friends of our age।
Yes. छोटे बच्चे हैं. If you become judgmental, if you criticize the child every second moment, if you compare the child, why will a child come and talk to you and tell whatever the child is feeling? So you have to stop that. That is where Correct. what I say कि emotionally safe parenting इसको बोलते हैं. Your child should come and talk to you without even giving a second thought. Absolutely. Yeah. So, if we talk about any one habit which parents should adopt, जो कि मतलब आप कुछ ऐसा बताएं जो वो मे बी कल से ही शुरू करें, एक हैबिट, तो वो कौन सी हैबिट होगी? Simplest, spend at least 20 minutes with your child, keeping your mobile phones away. Just 20 minutes are enough for a child. आप उनसे एक बॉन्ड बना लोगे, एक कनेक्शन बना लोगे. Right, right. Because child is growing. उसको टाइम चाहिए. वो पहले भी I said ना, not lack Hmm. of love, lack of time and communication. So spend 20 minutes. आज से शुरू कर दीजिए 20 minutes. And थ्री टाइम्स हग अ चाइल्ड. मॉर्निंग जब उठता है, स्कूल से जब आता है, और रात को जब सोता है. ये लाइफ टाइम का ऐसा बॉन्ड बनेगा. कहते हैं ना, फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा Hmm. नहीं. तो हग अ Right, चाइल्ड right. एटलीस्ट थ्राइस. ग्रेट. आई या जस्ट होप कि ये जितने भी पेरेंट्स ये सुन रहे हैं वो ये चीज शुरू कर दे, सो दैट अल्टीमेटली हम एक बेटर कम्युनिटी, एक बेटर सोसाइटी बनाते हैं जब हम एक बेटर फैमिली बनाते हैं. सो दीज आर यस. वेरी वेरी यूजफुल इनपुट्स एंड आई होप दैट एवरीवन फॉलोज इट एंड डज दिस. राइट. सो now going ahead, because we have so many things to talk with you and to take your inputs on. Next thing that I want to focus on is about women in general, because Shrishti focuses on women, and you have a lot of things to share with us to inspire us. So this segment would focus on the women. And the first question I want to ask is something very, very general, जो होता है. Why do you think women normalize ignoring their own physical and emotional health? बिकॉज दे आर कंडीशन लाइक दिस बचपन से. They see their mothers sacrificing, putting everyone else first. They are conditioned. We see our mothers. Our mothers have seen their mothers doing this, and this is such a wrong thing to do. You have to Mm. love yourself first. Keep yourself first. It's not being selfish. Because I have seen, because when I was not well, I had a heart failure. I was on bed for complete 2 years. एक जब घर की लेडी की तबीयत खराब होती है तो पूरा नींव हिल जाती है घर की. Yes. We don't think that. So we should, break that pattern. जब तक हम ये पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, the woman is going to suffer. Health issues आने ही आने हैं. Emotionally तकलीफ होनी. And you tell me, mental health अच्छा नहीं रहेगा if you're not happy. Can you make a happy family? No. No, never. He is going to give you a reward at the end of your life. Correct. Correct. So love Absolutely. yourself first. खुद की हेल्थ का ध्यान रखो. खुद की खुशी का ध्यान रखो. If you are healthy, you are happy, you can spread happiness in the family. Because you are the backbone of the family. जब backbone ही में spine में problem हो जाती है, निवी, तो what happens? पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता पूरा है. सब बिगड़ जाता है. तो every woman need to remember this. Keep yourself first. Love yourself. Break that pattern. Mother को मत देखो. And after 50, why do you see women suffering a lot? किसी को knees में problem है, किसी को back में problem है. Because उस जब time था ख्याल रखने का, we did not do that. We kept everyone else first. Right. आखिर में Right. खाना खाएंगे. No, first have your meals because you need more healthy food. Right. You have to be Right. strong. You have to be healthy. So this is every woman should keep this in mind. Break the pattern.
for your good, for your healthy Absolutely. life. Absolutely, absolutely. So just want to share one insight here. When I started working in this area of mental health, तो Mm, मैंने कुछ वर्कशॉप्स किए थे फॉर सीनियर सिटीजन्स, मेन एंड mm, women both. mm, तो एक जो चैलेंज था, लाइक यू नो वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न्स हैं right. मेंटली सबके. तो एक जो कॉमन प्रॉब्लम थी विच आई केम अक्रॉस वाज, डिस्पाइट अ वुमन हु हैड अ करियर, वो वर्किंग थे नहीं थे जो भी था, एक जो कॉमन प्रॉब्लम थी वो सेल्फ आइडेंटिटी की थी. दे Yes. वर सफरिंग विद दैट सिंस एवर. तो उस Mm-hmm. वजह से ये जो आपने कहा ना कि 50 के बाद जो हमें ये इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं फिजिकल हेल्थ में, सो इट इज वेरी इंटरलिंक्ड. एंड यस, लुकिंग एट आवर मदर्स, अभी एटलीस्ट वी ऑल हैव सम, आई थिंक, एक्सपोजर है, करेज भी है, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बट उन्हें देख के हमें और सीखना अवेयरनेस है, है. अवेयरनेस आई है. अवेयरनेस है. यस, 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 एब्सोल्युटली. सो आपने, लाइक यू सेड कि व्हेन यू फेस्ड हेल्थ चैलेंजेस, तो यू वर इग्नोरिंग द साइंस इन द बिगनिंग कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है. बट उस फेज के बाद आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से साइंस हैं जो एक औरत को, एक वुमन को कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए? Right. Yeah, I did that. I did that. And I'll tell you, body gives you signals, huh? And we avoid. Okay. राइट. So when you feel tired, exhausted, fatigue, सबसे ज़्यादा, कमजोरी लगना, okay, breathlessness. I used to have these symptoms. And once a year, full health checkup is very important. What we don't do. राइट. Once a year, you go for a complete health checkup. Am वेरी I वैलिड. audible, Nivi? Am यस, I यस, audible? यस, आई थिंक देयर इज अ टाइम लैग बट यू Yeah, आर yeah. ऑडिबल. So yeah, yeah, yeah. So you should not avoid the signals body is giving you. एंड कहते हैं ना कि वंस अ ईयर गो फॉर अ हेल्थ चेकअप, जो कि हम नहीं चाहते, हम टालते. वी हैव दैट पैटर्न, यू नो, स्पेशली वुमेन जो होती है ना, वो कहते हैं ना, सैक्रिफाइस की देवी बोलते हैं जिनको, यू नो, लीव इट, लीव इट, लीव इट. किसी और की तबीयत खराब होगी, वी आर ऑलवेज देयर. ओके. करेक्ट. पूरा उनका खाने का डाइट, डाइट बहुत स्ट्रिक्टली हम डाइट पे ध्यान देते हैं, उनके आराम पे ध्यान देते हैं, बट वी डोंट डू दैट. सो इफ यू फील बॉडी इज गिविंग यू एनी सिग्नल, डोंट अवॉइड इट. कीप योर सेल्फ फर्स्ट. गो एंड सी द डॉक्टर्स. You have good doctors around you. Or once a year, go for a complete health checkup after 40. बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 40 तक तो कहते हैं ना, गाड़ी चढ़ रही है फिर गाड़ी उतर रही है. करेक्ट, So करेक्ट. don't ignore the signals. Don't avoid the signals. And I did मेक्स. that. I did that. I used to feel very tired. Swelling आती थी मेरे पैरों में, तो I used to feel, no, I walked the entire day maybe. So I ignored all these things. So कहीं ना कहीं दिमाग की भी, थोड़ा दिमाग का यूज करो, ऊपर है ना. And we don't do that. We use only our heart. Women do that. Mothers do that. दिल से ही सोचती है, दिमाग से नहीं. ऊपर में, राइट. ऊपर दिमाग इसलिए है कि इसको भी यूज करो. ऐसा, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, सडन चेंजेस क्यों आ रहे हैं. सो गो फॉर अ हेल्थ चेकअप. या आई वाज एक्चुअली कमिंग टू दैट कि मोस्टली ये हमारे मेंटल पैटर्न से रिलेटेड है. तो हम कैसे अपनी माइंडसेट को चेंज करना चाहिए. सो लाइक यू राइटली सेड कि उसकी सुनो कि ये चीजें क्यों हो रही हैं. एंड आई थिंक आस्किंग व्हाई फॉर एवरीथिंग इज व्हाट टेक्स अस टू द रूट कॉज. तो जैसे आपने कहा कि अगर कोई साइन आ रहा राइट. है तो क्यों आ रहा है, that वो questioning is very important, and या. that is how we alter our mindset also. So एंड वी अवॉइड दैट व्हाई, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू अस. अगर वो yes, व्हाई किसी और फैमिली मेंबर के लिए होगा, तो वील, यू नो, बिल्कुल डीप पे चले आते हैं. फिर हम मैदान में ब्रेक कूद दैट जाते पैटर्न. हैं कि क्यों हो रहा है, वो बिल्कुल. आइडेंटिफाई करो. क्यों हो रहा है.
या सो हम जितनी भी ये बातें करें, जितना भी हम एक दूसरे को ये बोलें, बट कहीं ना कहीं इट हैपेंस दैट वी कीप रिपीटिंग टू आवर सेल्फ कि आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लेटर. सो उसके लिए डू यू थिंक कि कोई कुछ ऐसी सेल्फ केयर हैबिट्स या रिचुअल्स हमें बनानी चाहिए सो दैट women, they could learn to prioritize themselves also? यू नो फर्स्ट थिंग इज प्लीज डोंट वेट फॉर दैट लेटर. वो कभी नहीं आता. Hmm. एंड वी आर कंडीशन की फॉर अस हेल्थ इज नॉट अ लग्जरी, राइट? हमको लगता है कि Yes. हम अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देंगे तो इट इज लग्जरी. नो, डोंट डू दैट. अभी कहते हैं ना, अभी ख्याल रखोगे तो लेटर यू कैन बी हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली. अभी इफ यू स्टार्ट अवॉइडिंग थिंग्स एंड डोंट कीप दैट गिल्ट कि इट इज नॉट अ सिन. खुद को पहले रखना इज नॉट अ सिन. इट इज सेल्फ लव. इट इज योर Yes. बॉडी. गॉड हैज गिवन यू. कहते हैं ना, घर घर एक मतलब कहते हैं ना, शरीर एक मंदिर है. टेक केयर ऑफ दैट. डोंट अवॉइड. डोंट कीप दैट गिल्ट. सबसे ज्यादा आई हैव सीन वुमेन कीपिंग अ गिल्ट की मैंने मेरा ध्यान रखा, पहले खाना खा Yeah. लिया. नो, going to a doctor, if you have any symptom, go to a doctor. It is not being selfish. Again I tell you, लोग सोचते हैं being it is being selfish. खुद को पहले रखा. No. So these are very small things जो कि बोलते हैं ना, आगे चल के बहुत बड़ा हो जाता है. So Hmm. don't do that. It's a request. Right. Keep yourself Great, great. first. और वो Yeah. कल कभी नहीं आएगा. कल कभी नहीं आएगा. Don't do that. Do it now. Right now. Go and see the doctor. Next part of our conversation will focus on occult sciences, जिसकी हमें थोड़ी बहुत information होती है, but not the right kind of information, or maybe half knowledge. So, because you have an expertise in that, so if this is something which a person is hearing for the first time, तो हम Mhm. simple way में occult science को कैसे समझें? What is it? Very, very good question, because many people don't know what is occult. उनको Yes. लगता है occult means black magic. Hmm. ठीक है, it is not that. It is something beyond that. What is occult actually? Occult is जो दिखता नहीं है, that is hidden, that we cannot see. Mm-hmm. Okay? जैसे Mm-hmm. हवा Mm-hmm. है, we can feel the air. हम देख सकते हैं क्या? Yes. We cannot see the air, Right. but we can feel. Same way is Yes. occult. Now, occult science क्यों बोलते हैं? अकल Mm. साइंसेस जो साइंस ने प्रूव किया है. अब एक छोटा सा Mm-hmm. एग्जांपल देती हूँ मैं. अब अकल्ट में आता है, एस्ट्रोलॉजी आता है, न्यूमरोलॉजी आता है, टैरो कार्ड रीडिंग आता है. ठीक है. Right. इवन मैजिक आता है. मैजिक भी अलग अलग तरह के उससे होते हैं. हीलिंग आता है, मेडिटेशन भी आ जाता है. अब Mm-hmm. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं, सो पीपल विल अंडरस्टैंड कि हाउ पावरफुल अकल्ट साइंस इज. जैसे कि नो मून और फुल मून में ओशन में हाई टाइड और लो टाइड आती है, तो हम सब ने पढ़ा है. Yes. हाँ. Okay? और साइंस क्या बोलता है? साइंस सेज मून इज अ सैटेलाइट. इट Mm-hmm. इज नॉट अ प्लैनेट. वी ऑल हैव स्टडीड Yes. हमारे स्कूल. Yes. और एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं? मून को एक ग्रह माना गया है, एक प्लैनेट माना गया है. एंड Mm-hmm. wherever your the sign is, जब जब क्या होता है, जब when a baby is born, तो जो Mm-hmm. सबसे ऊपर प्लैनेट होता है वो उसका लग्न में, फर्स्ट Mm-hmm. हाउस में वो प्लैनेट होता है. वो कोई सा भी प्लैनेट हो. और Mm-hmm. जो जो नंबर मून में रहता है वो उसकी राशि मानी जाती है. अच्छा. ओके. अच्छा, तभी मून साइन कहते हैं. मून साइन बोलते हैं. और वेस्टर्न Mm-hmm. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं? सन साइन. सन साइन. Yes. इट इज एज पर योर मंथ. जो जिस मंथ में Mm. आपका बर्थडे हुआ है वो सन साइन होता है. और Mm. मून साइन होता है जो आपकी जन्म कुंडली में हो. ठीक है. अब जी. जब जितना पानी इस अर्थ पे है, दे 70% ऑफ वाटर. सेम Mm. परसेंटेज इज इन आवर बॉडी. वी ऑल्सो नो दैट 70% ऑफ Yes. वाटर.
So Yes. just imagine if a satellite, what science says, moon is a satellite, जब वो ओशन के पानी को हिला सकता है तो वो हमारे बॉडी के भी पानी को हिलाता है. तो बिल्कुल, बिल्कुल. दैट इज वाई जो जो न्यू मून डे होता है, जैसे उसके पास हम जाते हैं तो मेंटल हम्म. हेल्थ के इश्यूज ज्यादा आते हैं. पीपल स्टार्ट फीलिंग लो, पीपल गेट हम्म. स्ट्रेस, पीपल फील लाइक जो जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं. ये तो सबने सुना है, पर क्यों होते हैं? दिस इज द रीजन, बिकॉज मून हमारे पानी को भी इफेक्ट करता है बॉडी के, द सेम वे इट डज कि ओशन के पानी को इफेक्ट कर रहा है. अंडरस्टूड ना? लोग ध्यान राइट, नहीं देते. राइट. दैट इज व्हाई जब नो मून, नो न्यू मून आता है, तब पीपल हम्म. फील वेरी लो. नाउ यू कैन अभी से जब कैलेंडर में लगाना, जब न्यू मून आएगा तो यू विल फील लो. कुछ काम नहीं हम्म. होगी, यू डोंट फील टॉकिंग, यू फील राइट. एग्जॉस्टेड, बहुत जल्दी थक जाते हो, यू डोंट फील लाइक हम्म. टॉकिंग टू एनीबॉडी, ऐसा लगता है आई वांट मी टाइम. तो इट इज ऑल राइट. अफेक्टेड बाय. तब ये हम्म. सोचो, व्हेन अ सैटेलाइट इज अफेक्टिंग सच अ बिग ओशन, ह्यूज ओशन, बाकी हम्म. प्लैनेट्स के क्या इफेक्ट होते होंगे? Yes, yes. Makes so much sense. अंडरस्टूड? Yes, यस. yes. सेम वे इज न्यूमरोलॉजी. अब आई टेल यू वन मोर थिंग. एस्ट्रोलॉजी मतलब हिंदी में भी से ज्योतिष शास्त्र. हम्म. ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष बोलते हैं ना, ज्योतिष विद्या. इन हिंदी हम्म. आई एम टॉकिंग अबाउट. जो हम्म. ज्योतिष क्या होता है? भगवान की ज्योत, जो भगवान के हम्म. करीब ले जाती है. हम्म. ज्योतिष, ईश, ज्योत, है राइट. ना? तो हाँ. एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस. उसमें बहुत बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशंस होते हैं. एंड आई बिलीव एक पत्रिका को देखने के लिए, इफ आई एम स्टडिंग वन हॉरोस्कोप, कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं. इट्स नॉट कि मुझे निवी ने पत्रिका दी, मैंने फटाफट बता दिया. बिकॉज इसमें इतने माइन्यूट कैलकुलेशंस होते हैं कि एक हल्का सा कैलकुलेशन बिगड़ गया तो पूरी आपके प्रिडिक्शंस भी गड़बड़ हो जाएंगे. सेम वे जो मैथ्स के कैलकुलेशन होते हैं, आप पूरा सम करते हो, एक नंबर गलत हो गया तो पूरा हम्म. आंसर गलत हो गया. सो राइट, राइट, राइट. एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डीप साइंस. अब वी व्हेन वी कम टू न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हम्म. क्या है? देर आर 9 प्लैनेट्स. ठीक है, 9 प्लैनेट्स हम बोलते हैं. अब उसमें क्या होता है? एवरी नंबर कैरीज एन एनर्जी एंड अ वाइब्रेशन. तो हम्म. जैसे आई गिव एन एग्जांपल, जैसे वन नंबर जिसका फर्स्ट को बर्थडे आता है, 1 जनवरी हो गया, 10th को हो गया, जिसका 28th हो गया, ठीक है. तो 19 हो गया. इसका हम्म. जैसे 1 + 9 = 10, तो वन 10. नंबर आ गया. वन हम्म. नंबर इज सन का नंबर, सूर्य का नंबर. अब व्हाट इज सूर्य? हम्म. पूरी दुनिया को सूर्य चला रहा है. बस. हम्म. स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, वेरी राइट. ब्राइट, वेरी हम्म. इंटेलिजेंट, अपने आप में हम्म. एक तेज होता है. पर न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है? ज्यादा वन नंबर भी आपको इगोइस्टिक बनाते हैं, आपको एरोगेंट बनाते हैं, आपको एटीट्यूड दे देते हैं. कहते हैं ना, हम्म. ज्यादा भी अच्छा नहीं रहता. सब कुछ नहीं ज्यादा रहता. खाना भी अच्छा नहीं रहता. किसी भी करेक्ट. चीज में व्हेन अब ज्यादा हो गया तो इट इज बैड. सो एवरी नंबर कैरीज एन एनर्जी. और जब हम बॉर्न होते हैं तो हम वी नेवर से कि ना निधि निधि बॉर्न हुई है, निधि बॉर्न हुई है. वी से कब हुआ? भाई 11th को हुए. वी हम्म. टॉक अबाउट अ नंबर, पर्टिकुलर नंबर. नंबर. हम्म. किस वक्त? टाइम, अगेन नंबर. हम्म. राइट. हॉस्पिटल में रूम नंबर. और अब हम्म. तो मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, मतलब नंबर की सारी चीजें. फ्रीक्वेंसी. या तो न्यूमरोलॉजी में है आपके साथ कंपैटिबल है कि नहीं. जैसे नंबर 4 की कभी शादी नहीं होनी चाहिए. दे कंपैटिबिलिटी होती ही नहीं है. अब मैं ये देखो हम्म. तुम्हारे पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, तो लोग इस हम्म. बात का वो कर सकते हैं. नंबर 4 राहु का नंबर होता है, नॉट गुड. अब 1 और 8, 1 इज हम्म. सूर्य का, 8 है शनि का. कहते अच्छा. हैं दे आर नॉट कंपैटिबल. 2 और 2 नॉट कंपैटिबल. हम्म. आर यू गेटिंग? तो ये यस, यस. कंपैटिबिलिटी, उनकी एनर्जीज मैच नहीं कर रही, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, तो कैसे आपस में बनेगी? तो न्यूमरोलॉजी इज अ ब्यूटीफुल साइंस. तभी बोलते हैं ना कि आप अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल तो आजकल हर एक के पास है. तो हम्म. मे बी आपका आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर से कंपैटिबल है कि नहीं. हम्म. And it is amazing. It creates wonders. People don't believe, but I do believe.
देन हम्म कम्स टैरो कार्ड। अब हम्म टैरो कार्ड क्या है? अभी अगर जो मेरे से जो सीखते हैं टैरो कार्ड्स, बस थोड़ा देर में बताती हूँ। सोक्रेटिस का जो लाइफ जर्नी है वो है टैरो कार्ड में। ओके। जैसे गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला, जी। तो सोक्रेटिस को 22 इयर्स में एनलाइटमेंट मिला, तो उन्होंने अपने पूरा जो उनकी लाइफ जर्नी है वो कार्ड्स में रखी। बाद में अलग अलग तरीके से बनाई गई है, गोल्डन डॉन सोसाइटी ने हम्म ये कार्ड्स को डेवलप किया, एंड इट इज हम्म ट्रूली अमेजिंग। साइंस सेज, अकल साइंस सेज, यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स ओनली 3 लैंग्वेजेस: नंबर्स, कलर्स एंड एलिमेंट्स। तो उससे टैरो कार्ड्स बने रहते हैं। जैसे हम्म राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग माय वर्ड्स। यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड एनी वर्ड। वो बस हम्म आपके नंबर्स को, कलर्स को और एलिमेंट्स को पहचानता है। सेम वे इज हीलिंग, same way is meditation, and it is राइट। beautiful. Right now I'm sitting with you, 10% of heart. I have healed myself through meditation, through occult only, through tarot card only. अब tarot cards is possibility of happenings बताता है. Suppose you ask me कि निधि मैम, आने वाले दिनों में मेरी फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगी? So I'll take out a card for you and I'm telling you, if you completely believe me, वो आपको exactly बता देता है कि आपकी क्या सिचुएशन रहेगी, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. It is all about your connection with the universe. It is all about faith and belief. एंड यस यस। मेडिटेशन आई एम टेलिंग यू, एक कुछ मेडिटेशंस मैंने ऐसे कराए हैं कि जिनको 3-3 साल नींद नहीं आती थी आफ्टर कोरोना, कुछ मिसहैप हो गया फैमिली में, यू हम्म। यू हैव सीन, पूरा वर्ल्ड एक कयोस हो में था, बिल्कुल। उनको नींद आने लगी मेडिटेशन से. एंड व्हेन हम्म यू अंडरस्टैंड द लाइफ जर्नी, लाइक व्हाई आई एम हियर, देयर इज अ हम्म पर्पस ऑफ माय लाइफ. व्हेन यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, लाइफ बिकम्स इजी. आपको अगर राइट। पता चल जाए ना, व्हाई यू आर हियर, व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, वो हम्म। थिंग्स बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि राइट। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. जैसे कई होते हैं, मैरिजेस आर नॉट वर्किंग, बच्चे परेशान करे. इफ यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, अब नाउ वी डोंट हैव दैट मच टाइम, अदरवाइज इट इज अ ब्यूटिफुल टॉपिक टू डिस्कस कि हम्म कैसे एनर्जीज काम कर सकती हैं. जैसे बताती हूँ, हम लोग 3 डिमेंशन वर्ल्ड में है, हमारे हम्म ऊपर 4 डिमेंशन होता है, सबसे ऊपर इज द 5th डिमेंशन. हम्म। So through meditation, we connect directly to 5th dimension, ओके ओके। right? Through meditation, and it is very easy to connect. It is not difficult. But the thing is, आपको पूरा फोकस चाहिए, आपको पूरा फेथ चाहिए. यू आर राइट। गेटिंग? आपको फेथ ही नहीं रहेगा तो कैसे? मतलब मैं अभी रील्स देखती हूँ यूट्यूब पे, और आजकल कितने रील्स आते हैं, मैनिफेस्टेशन करो. मैनिफेस्टेशन इज नॉट इजी. यस इट इजंट। हमने दिमाग में कुछ और चल रहा है, वी आर सेइंग समथिंग, वी आर राइटिंग समथिंग एल्स. दिमाग कैसे आपको मिलेगा? बट यस, यू कैन गेट व्हाट यू वांट, व्हाट यू विश, बाय द रियल प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन. आप कुकिंग करते हो, आप दाल हम्म बनाते हो, आप एग्जैक्टली तो दाल नहीं बन जाती ना, आपको धोना पड़ता है, हम्म कुकर में डालना है पानी, हल्दी, फिर उसका प्रोसेस होता है. सेम वेज हम्म। लोगों को प्रोसेस नहीं पता. क्या होता है, रील्स और ये यूट्यूब का ज्ञान जो होता है, दैट इज अधूरा ज्ञान. हाफ यस नॉलेज यस इज एग्री। ऑल्सो वेरी डेंजरस, हम्म। वेरी डेंजरस. तो आप अप्रोच कीजिए जो वो आपको वाकई दे. अकल साइंस इज ब्यूटिफुल. इट इज नॉट, लोगों को लगता है इट्स ब्लैक मैजिक. नो, इट इज नोइंग योर सेल्फ, meeting yourself and connecting with the highest energy. And I'm राइट। telling you, I have cured myself through occult, through tarot card, through meditation. इतना पावर है. थायराइड, बीपी, डायबिटीज, इवन कैंसर, अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे प्रोसेस अपने हीलिंग का, आप बहुत कुछ हील हो सकते हो. बट यू नीड टू नो बिल्कुल। द प्रॉपर प्रोसेस. एक तरीका होता है यस। ना हर चीज करने का. बिल्कुल बिल्कुल। If you do that, you can heal yourself, and that is what I am sitting in front of you. तुमने तो मेरे को तब भी जाना है, अब भी जाना है. बिल्कुल Now बिल्कुल। I'm perfectly fine. I'm perfectly fine. I'm healthy. I'm working. यस यस यू आर So डूइंग you have to. अमेजिंग। या Yeah, लाइक it's इसलिए all मैंने about बोला। your belief.
Yes, I wanted to bring this here because जैसा आपने बोला कि ये जो हाफ नॉलेज है उससे क्या होता है हम्म, कि रीचिंग द राइट पीपल, रीचिंग द राइट एक्सपर्ट, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। एंड दैट इज वेयर ये बिलीफ भी मैटर करता है, बिकॉज जैसे आपने सही बोला, मैनिफेस्टेशन, वी नो इट इज वेरी पावरफुल, बट वी डोंट नो व्हाट हम्म, इज द प्रोसेस। तो हम एक बार करते हैं, नहीं होता है, फिर हमारा विश्वास हट जाता है। सो yes. दैट इज द रीजन कि मेरा फोकस था कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या है, और थोड़ा हम इस पे बात करें, क्योंकि it works wonders, but one part of the world is working is following that social media university, we can say. तो वहां पे चीजें Yes. थोड़ी problematic होती हैं, and we need real people coming out and bringing this science into the world of common people like us. So Yes. yeah, I know, like I wanted to ask what role it has played, but हाँ, हमने शुरू से बात की कि it has helped you a lot, especially to bring up your health. Completely, Yeah. completely healed because of that only. I thank gratitude to universe. Mm. Every minute मेरा gratitude रहता है कि universe help me to heal. And मेरे Absolutely. से बड़ा एग्जाम्पल, बिकॉज आई एम अ रियल एग्जाम्पल. एंड Yes. वी नीड टू बैलेंस हमारे, कहते हैं ना, बोलते हैं 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्व Mm. बाहर है, उनको बैलेंस कर लो. बिल्कुल. एंड Mm. माई रिचुअल्स एंड रेमेडीज आर नॉट अबाउट, आई डोंट बिलीव ये पूजा करवा लो वो. रिचुअल्स एंड रेमेडीज आर सो सिंपल. देन एवरीडे लाइफ, इफ यू स्टार्ट दोज रिचुअल्स, तो Mm. आपको ब्लेसिंग मिलती है यूनिवर्स की, वो एलिमेंट्स की मिलती है. सो बिल्कुल एवरी बिल्कुल. दैट इज द रीजन इतने प्रॉब्लम्स मैं देखती हूँ लोगों को क्यों है, बिकॉज बैलेंस ही नहीं है. इट्स ऑल अबाउट Mm. बैलेंसिंग ना. कार कार चल रही Absolutely. है 4 व्हील पे, ट्रेन चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है, एक व्हील निकाल देंगे तो क्या होगा. Mm. सो दिस इज व्हाट लाइफ इज, बैलेंस विद द नेचर. Right. बस दैट्स ऑल. राइट. सो लाइक जैसे आपने बोला कि बहुत लोग सोचते हैं कि इट इज अबाउट मैजिक, इट इज अबाउट ब्लैक मैजिक. सो हाउ डू यू थिंक वी कैन एनकरेज पीपल टू अप्रोच दिस साइंस इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल वे, लाइक वो सिर्फ. फर्स्ट या. बिलीव. एंड ट्राई इट योरसेल्फ. यू सुनी हैव टू सुनाई फर्स्ट बातों पे ना बिलीव जाए. ना. पहले खुद ट्राई करो कुछ भी. आई एम टेलिंग यू, अगर इफ सपोज किसी को बहुत ज्यादा इश्यूज है लाइफ में, रीच आउट टू मी. रीच आउट टू मी, आई विल टेल यू वेरी इजी प्रोसेस, बहुत इजी, बिल्कुल सिंपल. अरे ये ऐसा भी होता है क्या. अभी छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आई वाज इन भोपाल. बहुत इश्यूज है एक फैमिली में, बहुत, मतलब आई एम टेलिंग यू, पूरा कंप्लीटली फिनिश है वो फैमिली, कुछ इश्यूज हो गए थे. अब मैं उनके घर गई तो उन्होंने अपने दरवाजों के बाहर हनुमान जी रखे हुए थे, दोनों साइड. तो मतलब आपने यहाँ क्यों रखे, बोले वो एक किसी ने, पंडित जी ने बोला था वो अब दरबान है. मैंने बोला आप भगवान को घर के बाहर क्यों रख रहे हो. घर के राइट. बाहर सिर्फ तुलसी जी का स्थान होता है, तुलसी जी को बाहर रखा जाता है आंगन में. तो बस किसी ने बोल दिया, आपने कर लिया. सपोज हमको भी कोई घर के बाहर खड़ा करेगा, हमको रात को कहाँ सोना है, घर के अंदर ही सेफ्टी होती ना. और मैंने कहा आप अंदर रखिए उनको. उन्होंने इमीडिएटली मेरी बात सुनी. एंड 2 दिन में दे सेड, मैम हमको 2 दिन में इम्प्रूवमेंट मिला है जो इतने दिनों से नहीं मिला. वंडरफुल. मतलब लोग मानेंगे नहीं. लोग मानते ऐसे कहीं होता है, इससे होता है. यू टेल मी, व्हेन आई एम टेलिंग यू द स्मॉल थिंग, डोंट यू थिंक इट्स ट्रू, आप भगवान को बाहर रख रहे हो. यस यस. एब्सोल्युटली. मैं या So that is छोटी सी what बात है, बट you रॉन्ग should go आइडिया. into the depth. You should go into the depth ki why we are doing these things. For what? राइट. राइट. Just anybody and any person is telling you and you are following that. पहले उसको पता तो करो. एग्री. Is it the right source? You're अगेन आई getting? थिंक अगेन वी हैव कम बैक टू दैट थिंग कि अगर कुछ बोला जा रहा है तो उसका वो क्यों जानना जरूरी है. डोंट जस्ट फॉलो ब्लाइंडली. वो क्यों Yes, कह रहे हैं, yes, उसका क्या रेलेवेंस है, वो जानना जरूरी है. yes, एब्सोल्युटली. yes. सो
Another question which I have on this in this segment is, जो हम जैसे आपने बताया in a very beautiful way, आपने बताया कि कैसे planets हमें influence करते हैं, about the moon days also, जैसे अभी गया था, I think there was a time, तो that I experienced myself also. Suddenly I was very energetic and suddenly for a couple of days it was कि एकदम से low हो गया, कुछ करने का मन नहीं हो, कुछ नहीं हो. तो a friend of mine who's also in healing, she said कि this is the reason, and she was also going through the same thing. तो इमोशनल वेलबीइंग के लिए ये स्पिरिचुअल और अकल्ट साइंसेस के प्रैक्टिस, डू दे हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो? कैन वी डू सम प्रैक्टिसेस सच इन सच अ वे कि हमारा जो इमोशनल मेंटल बैलेंस है वो हमेशा बना रहे, या फिर जब हम कुछ कंप्लीटली, फेस करते हैं तभी हम जाते हैं? कंप्लीटली, कंप्लीटली। पहले पता है, बहुत पहले के लोग पूरा लूनर साइकिल से लाइफ चलाते थे। हम्म. हम वो वी हैव लॉस्ट दैट, अभी राइट. कितने बजे तक लोग खाना खा रहे हैं? 11-12 बजे खाना खा रहे हैं। सनसेट के बाद पहले खाना नहीं खाया जाता था। यस, यस. सबसे सिंपल चीज बता रही हूँ, देर हम्म. इज नो टाइम फॉर डिनर नाउ डेज। कोई कितने बजे भी खाना खा रहा है, 2 बजे रात, 12 बजे बाद। बैलेंस नहीं बिगड़ेगा बॉडी का, हम्म. राइट? पहले एकादशी होती, एकादशी अभी भी है, देखो अभी आ रही है, परसों एकादशी। हम्म. एकादशी में चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो भी फूड पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, वो पानी हम्म. वो खाना ही नहीं चाहिए। और अगर आप फास्टिंग कर सकते हो, वो तो सबसे अच्छा। हम्म. कुछ रिचुअल्स होते हैं, आप फॉलो करोगे। मेडिटेशन तो एवरी डे का रूटीन ही चाहिए। एवरी डे यू स्लीप, एवरी डे यू हैव योर फूड, एवरी डे यू डू योर वर्क, एवरी डे यू बेथ, एवरी डे मेडिटेशन कीजिए। स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ एंड कनेक्ट विद दैट एनर्जी। राइट, राइट. हम सो बोलते हैं ट्रू. ना, हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूरी दुनिया बनाई। अपना अपना हर रिलीजन में अलग अलग है। अब हम्म. व्हाट आई सेज, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक सेल हमारा 3 न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बना रहता है। तो आई से ब्रह्मा विष्णु महेश हमको जीवन दिया है। कुछ राइट. चीजों को आप, एंड आई टेल यू, जो भी नेगेटिव थॉट्स, देखो इस दुनिया में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। आई वोंट से आई वोंट से इविल एंड दिस, एस आई वोंट से नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोल रही हूँ, ठीक है? हमारे सेल्स जो होते हैं, दे दे लाइक टू लिसन टू पॉजिटिव थिंग्स। दे हम्म. लाइक टू बी हैप्पी। राइट नाउ निवी, अभी वी आर कनेक्टेड हियर, बट यू आर सिटिंग इन पुणे, आई एम सिटिंग हियर। स्टिल राइट. हमारे सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल. प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ने लगी हैं? प्रॉब्लम्स इतनी क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि हमारे सेल ना, दे बिकम डल, दे बिकम सैड, क्योंकि उनको नेगेटिव चीजें पसंद नहीं। इफ somebody is gossiping, somebody is talking bad about somebody, somebody हम्म. is thinking evil for anyone, तो उनके सेल्स ना बहुत लो फील होते हैं, वो चुप हो हम्म. जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो वो डिजीजेस बनते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जो मैंने डिजीजेस बताई थी अभी। तो राइट. it is about, you have to follow certain discipline in life, certain, कहते हैं ना, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, हम्म. टाइम पे खाओ, ईट हेल्दी। कुछ राइट. भी मत खाओ जो मिल रहा है। इवन हम्म. वाटर, वाटर, हम्म. आप जब पानी पीते हो, डोंट वेस्ट वाटर। वाटर से पहले यू कनेक्ट विद द वाटर, देन हैव वाटर। देखना कितना फर्क पड़ेगा। अगेन 70% ऑफ वाटर, कितना यस. कितना प्योर चाहिए वो चीज। तो बिल्कुल. all these practices, these are very small, small practices. If you follow, you will हम्म. feel healthy, you will feel good, you will feel happy. And राइट, again, राइट. जब न्यू मून आता है, तो लो होता है, उस वक्त जरा कम बात करो, कम अच्छे अपना, बी साइलेंट, ज्यादा आप किसी से बहसबाजी नहीं। मेडिटेशन ज्यादा करो, हल्का खाना खाओ, डोंट ईट मसाला और हेवी फूड। और कोशिश करो सनसेट के बाद खाना बंद कर दो, इतना लाइट लगेगा। ये एक छोटी सी चीज शुरू करोगे ना, तो काफी चेंजेस आपकी बॉडी में आने लगेंगे। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। बट लोग, यू टेल मी, 9-10 बजे, 11 बजे, 12 बजे हम्म. कैसे डाइजेस्ट होगा फूड? स्टैंडर्ड टाइम और चेंज हो गया है.
या वैसी प्रैक्टिसेस है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एक्चुअली। अगर हम सोचे तो सच में एक डिसिप्लिन इन फॉलोइंग द टाइम इज समथिंग विच कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। जैसे पानी का भी आपने कहा, जब हम पीते हैं तो वी शुड बी ग्रेटफुल। पहले तो हम यस कनेक्शन बनाएं कि वी आर गेटिंग इट, वी शुड बी ग्रेटफुल एंड देन यू कंज्यूम इट। तो वो पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है बॉडी की। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल। So I hope this goes out and people start practicing it because after all, if we are good, we make जैसे पहले हम बात कर रहे थे, we make better families, we make better communities। और आज बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज को spread out होने की, positivity and emotional stability। एंड अ So बेटर वर्ल्ड लिव एंड अ बेटर वर्ल्ड, यस यस। बहुत ज्यादा एजिटेशन, बहुत ज्यादा मतलब ओवर स्टिमुलेटिंग चीज होती है, एंड बिकॉज ऑफ विच ये मुझे लगता है ये सारे बैलेंस हमारे बिगड़ जाते हैं। बट ये जो इन। आपने बताया, उन प्रैक्टिसेस को अगर हम करते रहें तो बाहर की चीजें कंट्रोल में नहीं है, बट हाँ, हम खुद को रेगुलेट कर सकते हैं। सो You वेरी, cannot change the world. You have to change yourself. यस यस, एब्सोल्युटली। ओके, वंडरफुल। ये सेगमेंट वाज वेरी अवेकनिंग बिकॉज आपने बहुत ऐसी बातें की जो हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अदरवाइज Right. वही हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस वाली बात हो जाती है। Always do this. Okay, so moving ahead, we spoke about this thoda, like we touched upon this, but healing happens together। जैसे आपने बोला, शुरू से ही आपने इस चीज पे emphasize किया कि हम जहाँ हैं वो हम उनके वजह से हैं जो हमारी लाइफ में आए। So when your difficult time was there, आपका मतलब आपकी जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकली तो obviously many things were going on, and mentally, what was the role of your family in that mental health healing? I'll tell you, Nivi, I'm really grateful to God. वो जो ऊपर एनर्जी है, by gratitude, every minute, every second that I'm blessed to have a wonderful family. They have always been, there for me, a big support, and always believed in me. So what time it is not that time, it has always been. You're getting? So Hmm. वो actually it was like you can say 4 years of my life. Their trust, they being with me always, and giving me all the support I wanted, and always making me strong. Like I'm telling you, there were people who were calling me कि हार्ट फेलियर है 10% है, अब तो तुमको पूरा आराम करना है, लाइक यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, ऐसा देर आर पीपल, There are people, there yes, are yes, agree. many people like this. Hmm. But my husband, my daughter always believed कि no, we know you are going to stand up again, and we know you're very strong. They believed in my strength, and ये शुरू से रहा है. It is not only during my heart failure, before that also, um, my husband always tells me कि तू तो शेरनी है मेरी, like that belief in me that you can do anything, nothing is possible for you in this world. My daughter and my husband always say that कि nothing is impossible for you. वो लाइन जो होती है ना, वो खुद में it's like so powerful कि Yes, वो yes, आपको लो absolutely, फील करने ही नहीं देती. आप right. कितना भी फाइट करो, आप कितना भी फाइट करो, फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं करती, आप पे बिलीव नहीं करती, तो आप कुछ नहीं कर सकते. अकेले कोई, दुनिया में अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता. नहीं कर So सकते। I've always been blessed, to have a wonderful family. They are my backbone. They are my lifelines. Wonderful, so good to hear this because like it's very important। yes, your family, if your family is standing by you, तो फिर आप में वो शेरनी वाली चीज आ ही जाती है कि हाँ है। Exactly. Yeah. ग्रेट। अच्छा, one thing which I feel is like nowadays we don't have वो joint family, या एक होता है वो bonding वाली problem होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि families want to help in a situation, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि boundaries कहाँ हैं, कि help करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। So how do you think
लाइक उनको क्या करना चाहिए अगर दे आर इन अ डाइसी सिचुएशन, इवन बिटवीन स्पाउसेस इट हैपेंस कि मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक उसको सपोर्ट करूं, एक लिमिट के बाद वो हम्म। डिपेंडेंसी ना बन जाए। तो इस ऐसी सिचुएशन में हाउ डू यू थिंक अ फैमिली कैन बॉन्ड वेल एंड येट नॉट बी ओवर डिपेंडेंट? आई टेल यू, फर्स्ट तो लाइफ में सबसे पहला पर्सन शुड ऑलवेज फॉलो इज लिव एंड लेट लिव फर्स्ट. We just read, we just listen to these words, live and let live, and always be present for each other. You know, राइट। understood? First, live and let live. Second, always be present, because family का meaning ही ये है, to be राइट। there for each other and never make other person dependent on anybody. राइट। कहते हैं ना कि help the person when the person needs. हम्म। otherwise कहते हैं ना, breathing space, एक space is very important. जब तक राइट। आप space नहीं दोगे वो suffocation होता है, वो I'm talking about any relation. राइट। So राइट। give space, breathing space to each other, respect each other, be there for each other, support each other, and let every member follow their own passion. You वंडरफुल should not वंडरफुल। force, and you should not make the person feel ki no, you are burdened by my responsibility and you have to do. Like, छोटी छोटी चीजें होती है ना, अगर every family has this, understand each other, support each other, live and let live, respect each other, and support the passion of each and every member of the family. And parents should, as I said in the beginning, the children always see what your, they absorb your energies, यस। यस। and you don't need to teach a child. So they see how you respect elders of the family, how you respect others. You राइट। don't need to teach them. Nuclear family में क्या हो रहा है ना, it's people are being self-centered sometimes, मैं, me, my family. राइट। राइट। So it should not be like this. You know, uh, grandparents are very important because उनके experience जो वो सिखा सकते हैं वो हम नहीं सिखा सकते. बिल्कुल बिल्कुल। And what we can teach is our children हमारे experiences. But yes, we should respect the experiences of our children also, because उनके भी तो everyday experiences हो रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री, आई स्पेस कंप्लीटली एग्री। स्पेस देना, स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सफोकेशन नहीं होना चाहिए. जब सफोकेशन होने लगता है तो इट इज नॉट फैमिली देन. वो तो हॉस्टल हो गया, वो तो स्कूल हो गया, या लाइक स्कूल इन अ सेंस कि डिसिप्लिन होता है. यू हैव टू सिट क्वाइटली इन द क्लासरूम एंड द टीचर टीचर्स यू. राइट। कहते हैं राइट। ना, घर में ही तो शेर होते हैं, घर में ही तो शेर होते हैं सब. तो रिस्पेक्ट ईच अदर, तो ये बाउंड्री बहुत जरूरी है. जब बाउंड्री नहीं होती, कई घरों में होता है कि सिर्फ मेरी चलेगी. You have to listen to me. These are my set of rules. You have to live according to my set of rules. No, this is not going to happen. ये एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा. वो then it is not a family. ऐसे नहीं रहता ना, फिर तो ऐसे खुल जाता है. बहुत जरूरी राइट। है ऐसे रहना, यूनाइटेड. तो ये यूनाइटेड कब रह सकते हैं, जब ये कुछ चीजों को आप फॉलो करो अपने लाइफ में. सपोर्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड लिव एंड लेट लिव. दैट्स ऑल. लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बातें बहुत सारी आपसे की जा सकती है, बट या वी हैव अ लिमिटेशन, सो moving on to the next one, because I think 28 years is a very long time, और आपने बच्चों के साथ काम किया है, पेरेंट्स के साथ किया है, with the energies, so like one episode would not just justify everything that we can get from you, but still we are fortunate that we are getting it. uh,
Moving ahead, these are some rapid answer questions. So, मतलब not that वो 5 second वाला नहीं, but one word, one liner वाले questions हैं. So Mm. this will give us, this will help us know more about you as a person also. So the first Okay. one is one word that describes you today. Grateful. Always grateful for everything. Lovely, lovely. I have this like I resonate you as a person with this word always because I've always seen you showing gratitude. Like wherever your I see your work or I see whenever we meet, I have seen that you are always grateful. And आपके हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं हर चीज में. So perfect description. Okay. Your one food indulgence जो देख के Always बस dal आपको chawal. दाल चावल. Garam garam dal chawal. I can have it for months also. Great, great. Okay, one lazy hour delight. One? Lazy hour delight. अगर आपके पास time है, it's a Yeah, lazy hour, what do you yeah, do? yeah, yeah, understood. Listen to music Hmm. and spending time with myself, my thoughts. I love Nice. that. Okay. One habit that keeps you mentally strong. Again, I will say grateful for Yes. every small thing. I think so you can understand what I mean to say. Yes, yes, absolutely. Because I think your thoughts are very regulated when you are in a grateful zone. Like Yeah, वो yeah, yeah. जो हम कहते हैं It ना keeps me mentally nothing. strong. Yes, yes, yes. Nice. Okay, one, yeah, you already shared this, but crisp may, if I have to ask, one parenting lesson every adult should remember. Be present. Absolutely. Very important. Yes. Be So present for true. your child. That is what the child needs. A child needs nothing, just your presence. Yeah. Absolutely. Okay. One book or quote that changed your life or had an impact on your life. I always keep autobiography of a yogi. It's like it has changed my life and my own book, Whispers of the Heart, Great. because I Great. have poured my heart into it. And autobiography of a yogi, everyone should read at least once. Have you read? Have you read, Nivi? I have it, but I haven't completely read it. My father gave it to me. So I have Yeah, the book, but I will surely go and read it now. you should read. Okay. One way a woman should contribute in growth of another woman, Uplifting each other, not judging each other. right? Only a woman can uplift other women and never judge. Never judge. Yeah. Okay, one thing, like you're always grateful, I know, but one thing which comes to your mind at the top, that you are deeply grateful for today. My family, I've got the best family in the world. And my friends, I've got wonderful people in my life. I'm blessed to have wonderful people, Nivi. Every day I thank God कि इतना कुछ दिया है ऊपर वाले ने कि I can't ask for more. बहुत बहुत दिया है. Wonderful family. So lovely to hear this. Okay, so the last one is a fill in the blanks. A Okay. family becomes truly strong when dash. Trust, being there for each other, and communication. Lack of communication gives lots of misunderstandings and creates a gap. That is where we say na generation gap क्यों आता है because of communication. Yeah. Wonderful. So,
we come towards the closing of this episode. And to close with, I need a reflection from you. If every parent and every woman listening to us today, to the entire conversation, if you want them to remember one message from this episode, what would that be? Love yourself, take care of yourself, because you cannot pour from an empty cup. You have to have it in you. Right. Thank you. Thank you so much. It was absolutely lovely and an honor to talk to you, to know so much about things which we hardly knew, and to get all the insights that you've shared. Thank you very much. Thank I'm you. really, really honored. Thank you, thank you, Nivi. It is a privilege, and thank you so much for inviting me. Thank you. Thank you, ma'am. Take care and have a good evening You ahead. too. God bless you. Thank you.